بسم الله الرحمن الرحيم حشر میں کھل جائے گی ان رونے والوں حشر میں کھل جائے گی ان رونے والوں کی زبان پر مدح ہے فضا کی صدا آئی کہ ہے پیٹنے والوں سب مل کے ارے میری خزادی کو سنبھالو روتی ہے کدھر بانوئے عالم کو بلا لو لوٹا گیا گر خاک عذاب عالم پہ ڈالو لوٹا گیا گر خاک عذاب عالم پہ ڈالو اب تک سے حسین ابن علی لاتے ہیں لاشیں سیدانیوں جوڑی پر چلو آتے ہیں لاشیں سیدانیوں جوڑی پر چلو آتے ہیں لاشیں لاشوں کو شہیدی صفِ ماتم پر جلائے سب اہل حرم پیتے روتے ہوئے آئے زینب نے نفریاد کی نے اشک بہائے بیٹھی رہی سرزانوئے اقدس پر جھکائے بیٹھی رہی سرزانوئے اقدس پر جھکائے کچھ تھے موفق تھا مزاج کو سے ترتیب نے اپنی نبائی کی نلاشوں کی خبر دی اپنی نبائی کی نلاشوں کی خبر دی نوئے رکھے زانوئے زینب پسند کے جو بیبیاں تھی آ گئے منہ کو جگر ان کے زینب نے جو کی جھکے رخوں پر نظر ان کے دکھلائی دیے چاند سے موقعوں میں ترن دکھلائی دیے چاند سے موقعوں میں ترن رخسار بھی مجروح تھے ابرو بھی کٹے تھے شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تعریف امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو عباس علمدار ثنا کرتے ہیں اٹھو ہم شکل نبی مدح وغا کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں اٹھو آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے صدقے گئے ہو جنگ کے دن سو نہیں جاتے صدقے گئے ہو جنگ کے دن سو نہیں جاتے عزیز سے اماں کا بھی دل سے رے پیارو جیتی ہوں میں قسمت کا میری پھر ہے پیارو کیا جانے میری موت میں کیا دیر ہے پیارو تم مر گئے دنیا میرے اندھیر ہے پیارو مر گئے دنیا میرے اندھیر ہے پیارو ہے کون سی دولت جسے کھونے کو رہی ہوں معلوم نہیں اب کسے رونے کو رہی معلوم نہیں اب کسے رونے کو رہی تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کہ شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کہ ماں درد لے بیٹا کو سمجھائے گی کیوں کہ وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں نکلوں جو تجسس میں تو بھیجا نہیں واری ماں ہوں میرا پتھر کا گلے جا نہیں ماں ہوں میرا پتھر کا گلے جا نہیں واری تل میں خیال
بتاؤ معاشر تھے مقامات کہاں ہوگا بتاؤ دل تم کو تمام آج کہاں ہوگا بتاؤ بستر سر شامات کہاں ہوگا بتاؤ بستر سر شامات کہاں ہوگا بتاؤ ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے ایسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی تھا بگلے جائے بیان درد کے سن کر ایک حشر تھا سیدانیاں جب پیٹتی تھی سر بانوں نے کہا قبلہ کون سے اٹھ کر مر جائے گی مالاشوں کو لے جائیے مر جائے گی مالاشوں کو لے جائیے مر جائے گی مالاشوں کو لے جائیے زندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھا اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھا اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھا من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ذکرہ شرف للذاکرین وحمدہ وسیلۃ الی الجنۃ للحامدین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الرحیم والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا صلوات بر محمد کا سلسلہ رواں اور دواں ہے اور تقریر کا وفادار اپنی وفاداری کے ساتھ میدان تقریر میں غدیر سے کربلا تک دوڑ رہا ہے دیدان گرامی 2 دن پہلے میں نے آپ سے قرآن کی عظمت کے بارے میں 2 جملے کہے تھے کہ اللہ کی عظیم کتاب قانون اور آئین اور دستور کی کتاب ہے اور قانون اور آئین اور دستور کی کتاب میں جب میں پڑھتا ہوں تو قانون کی باتیں کم ملتی ہے قصے کہانی زیادہ ملتی ہے نہیں کہا تھا اور اس لیے دہرایا کہ جو نہیں موجود تھے وہ سن لے اور تاکہ تقریر مربوط رہے اور پھر اس کے ثبوت میں اب کہتا ہوں کہ اب ذرا سوچئے قانون آئین دستور کی کتاب میں میں انڈیا کا رہنے والا اگر انڈیا کے قانون میں میری پیدائش کی بات لکھی جائے میرے ابا کے نام کے ساتھ کی فلاں صابر حسین کے گھر زین العابدین فلاں تاریخ کو پیدا ہوا تو اب بتلائیے قانون پڑھنے والوں کو لکھنے والے سے شکوہ ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ یہ قانون کی کتاب لکھ رہے ہو کہ زین العابدین کی سوانح عمری لکھ رہے ہو توجہ کا تاریخ وزیدار گرامی تو جب قرآن اللہ کی عظیم کتاب قانون اسلام کی کتاب دستور الہی کی کتاب شریعت اور فطرت کے بتائے ہوئے اور بنائے ہوئے اللہ کے قوانین کی کتاب ہے تو اس میں یہ کیا مطلب ہے کہ کسی کے نظر و نیات کا تذکرہ کسی کے پیدا ہونے کے بعد کسی کے بیاہ شادی کا تذکرہ کسی کی گود میں کسی کے پروان چڑھنے کا تذکرہ اگر نہ یقین آئے تو کہیے 2 ایک آیت پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب عمران کی بیوی نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ پالنے والے میں نے یہ تیری بارگاہ میں نظر کر رکھے آئے کہ جو میرے جزدان میں بچہ ہے جب یہ پیدا ہو جائے گا تو تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی اچھا تو جب پیدا ہو گیا بچہ ہونے کے بجائے بچی پیدا ہو گئی تو وہی نظر کرنے والی عمران کی بیوی نے یہ کہا میں توجہ کا آپ سے تعلیم ہو کہ ذرا لفظ عمران کو بھی نظر رکھے عمران کی بیوی نے یہ نظر کی اور تاریخ انبیاء میں ہو تاریخ اولیاء میں ہو تاریخ خزانہ خدا میں 3 عظیم المرتبت عمران گزرے ہیں 3 عظیم المرتبت تو 2 عمران کو تو عمران ہی کے نام سے پہچانا جاتا ہے 1 عمران کو اس کی کنیت سے پہچانا جاتا ہے اور کریں گے 3 عمران گزرے تاریخ کائنات کی انبیاء میں اور اولیاء میں 2 عمران کو ان کے اصل نام کے 1 مریم کے باپ عمران 1 موسیٰ اور ہارون کے باپ عمران اور 1 علی اور جعفر و عقیل کے باپ عمران جن کو ان کی کنیت ابو طالب کے نام تو اس لیے میں نے کہا کہ جب اس پر بھی نظر رکھیے
नजर की थी। तो अब कोई भी कहीं भी कोई इमरान की बीवी हो तो उसका ताल्लुक बैतुल्लाह से होना जरूरी है, चाहे किबला अव्वल हो चाहे किबला कायम, यानी हमेशा वाला किबला हो, चाहे एक किबला वक्ती तौर पर नहीं समझे। इमरान की बीवी ने नजर की थी ना कि बच्चा पैदा होगा तो वक्फ कर दूंगी बैतुल मुकद्दस के लिए, तो ये कानून की किताब हुई, ये किसी के नजर नियात की हुई, किसी के पैदाइश की तारीख हुई। और आगे खुदा जाके बयान करता है कि हम बता नबातन हसनन, देखो ये बच्ची जब पैदा हुई उसकी माँ ने नजर की तो नजर के मुताबिक अपनी नजर की इफा के लिए बच्ची को ले जाकर रख दिया। बीच की बातें सुनाऊंगा तो बाद में पहले सुन ले। तो रख दिया, जिसने भी पाला तो अल्लाह कहता है कि हम बता नबातन हसनन, जैसे ही आवाज में आई मैं अल्लाह से ही लड़ने लगा। फिर तो मुझे नहीं कहिएगा, मैं अल्लाह से लड़ने लगा कि तूने कैसे मरियम को पाला, तू हाथ पैर नहीं रखता, झूला झुलाना नहीं जाता, शीशी पिलाना नहीं जाता, दूध उसके लबों से लगाना नहीं जानता, रोटी चावल और खाने की चीजें उसे खिला नहीं सकता, फिर कैसे कहता है कि हम बता नबातन हसनन, मैंने मरियम की बेहतरीन परवरिश की। कहा नादान मेरा एक वसूल है, जब मेरा कोई खास बंदा कोई काम करता है तो मैं उसे अपना बना लेता हूँ। देखो मेरे रसूल ने अपने दुश्मनों की तरह कंकरी फेंकी थी तो मैंने कहा कि मार मैता इधरमत वाला किन्नल्लाह रमा, कि आपने कंकरी दुश्मन को नहीं मारी बल्कि अल्लाह ने मारी। तो ऐसे ही मरियम के बारे में देखो, मैं आधा जवारे से मुस्तस्ना हूँ, मुबर्रा हूँ, मुनज़्ज़ह हूँ। मैं मरियम को गोद नहीं ले सकता था मगर मेरा एक बंदा ज़करिया, तवज्जो फरमाइए, कुरान की आयत है क्योंकि बाद में इस आयत के शरह भी हो गए। अम्बत नबातन हसनन वकफ़्फ़लहा ज़करिया, अल्लाह शरह करता मैंने परवरिश मरियम की बेहतरीन की और फिर फौरन कहता कफ़्फ़लहा ज़करिया, नहीं परवरिश के लिए ज़करिया कफील बनाए गए थे। अब मालूम हुआ कि जब किसी मासूम मासूमा सिद्दीक सिद्दीका ताहिर और ताहिरा की परवरिश का मसला आता है तो खुदा उसकी जिम्मेदारी खुद लेता है और लेकर अब जिसे चाहे दे। एक बुलंद आवाज से सारा दे। किताबों के हवाले बाद में आज आधी मजलिस यानी आधे घंटे तक सिर्फ कुरान ही से सबूत वाक़यात की रोशनी में अबू तालिब के ईमान का लोग समझे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा मैं पूछूं, अगर मैं जिंदगी भर नमाज न पढ़ूं आपके सामने और नमाज पढ़ूं जी, मैं जिंदगी भर आपके सामने नमाज न पढ़ूं और नमाज पढ़ूं यानी पढ़ता रहूं, एक वक्त की भी कदा नहीं, तो आपको क्या हक पहुंचता है जो आप ये कह दें कि मौलाना नमाज नहीं पढ़ते? आप ज्यादा से ज्यादा अपने दीद के गवाही नहीं दे सकते कि हमने कभी नहीं देखा। भाई आपने नहीं देखा पढ़ते हुए तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप जिस मोहल्ले में मैं रहता उस मोहल्ले की मस्जिद में कभी गए? और जिस घर में रहता उस घर में आप कभी दाखिल हुए? देखा हमारे एक आलिम अल मुराजात के लिखने वाले और सलीम बुशरी जामिया अज़हर के वाइस चांसलर के दरमियान गुफ्तगू हुई इस बात के ऊपर कि आखिर क्या वजह है कि आज तक सारी दुनिया के मुसलमान पैगंबर इस्लाम के वफात और वलादत की तारीख पर मुत्तफिक नहीं हो सके। आप कहते हैं 17 रबीउल अव्वल, हम कहते हैं 2 रबीउल अव्वल या 12 रबीउल अव्वल या 9 रबीउल अव्वल। मरने की तारीख आप बयान करते हैं 28 सफर की और हम कहते हैं कि नहीं 12 वफात जो है यही 12 तारीख हुजूर के विसाल की है। तो क्या वजह है? तो शरफुद्दीन मूसवी ने मुस्कुरा के कहा राज ये है घर में बच्चा मेरे पैदा हो और आप उसकी तारीख विलादत किसी मोहल्ले वाले से पूछाएं। नहीं और क्या गलती जो हुई है कि अहले बैत के यहाँ जो कुछ काम हुआ पैगंबर के पैदा होने की तारीख आप पैगंबर के घर वालों से उनके बुजुर्गों से पूछते हैं। आप तो उन लोगों से पूछे जो पैगंबर से सिन में 30 साल 40 साल छोटे थे, कलमा पढ़ के जब आए तो वो रावी बन गए। सच्ची रवायत तो घर वाले बताएंगे, नहीं लुत्फाया दीदारे गिरामी, सच्ची तारीख की बात और लम्हे और दिन तारीख तो अहले बैत बताएंगे, बुजुर्ग बताएगा, पैदाइश की तारीख खुद बताएगा, वफात की तारीख। भाई बात सही है ना? बुजुर्ग मसलन मेरे पैदा होने की तारीख कौन सही बताएगा? मेरे अब्बा, दादा या चाचा या मामू जो मुझसे उम्र में बड़े हैं। अब जब तक मैं बड़ा होता वो चले गए अल्लाह की रहमत में, हम मरूंगा तो मेरे छोटे ही तो होंगे।
जी मेरे छोटे होंगे, इनमें बच्चे हों, पोते हों, भतीजे हों, वो बताएंगे कि किस तारीख। तो जब रसूलुल्लाह पैदा हुए तो चले गए, और इंतहा तो देखिए, कमाल जरा देखिए कि जो रसूल से भी 30-40 साल छोटे उम्र में थे, उनसे तो तारीख की पैदाइश पूछी जाती है, और जिसकी गोद में रसूलुल्लाह परवान चढ़े उसे काफिर बना के छोड़ ही दिया गया। अब अबू तालिब मुस्कुराते अपनी जगह पर खड़े हो गए, जरा देखो जमाने की। तो आगे एक बात हंसने की, नौजवान की याद दिला दूं, दौरे हाजिर के अंग्रेज मुअर्रिख लिखते हैं कि मुसलमान बेहतरीन मजहब वाले तो जरूर हैं, मगर बेवकूफ है, अक्ल से दूर हैं, क्योंकि इनके दरमियान एक अजीमुशान फलसफी और साइंसदान पैदा हुआ जिसका नाम है अली। उसने 12 मिंबर से कहा कि पूछो जो कुछ पूछना चाहो मुझसे, लीजिए। मगर ये इतने बेवकूफ है कि जब उसने दावा किया तो किसी ने पूछा कि कौन परिंदे अंडे देते हैं और कौन बच्चे देते हैं, और किसी ने पूछा मेरे सर में बाल कितने हैं, हम अगर मौजूद होते तो हम अली से 1400 बरस पहले पूछ लेते कि चांद पर बस्ती कैसे बसाए। किताबों की दुनिया में जाइए, किताबों में है। अली ने दावा किया, पूछो जो कुछ पूछना। एक पूछने वाला खड़ा हो गया, अली बताइए कौन से परिंदे बच्चे देते हैं, कौन अंडे देते हैं। हजरत ने कहा कि जिनके कान जाहिर हैं वो बच्चे देते हैं, जिसके कान उनके परों में छुपे हैं वो अंडे देते। हो गई बात। तो फिर कभी दावा किया तो पूछने वाले ने पूछ दिया कि अच्छा बताइए मेरे सर में कितने बाल है। तो कहा कि गिनने कौन बैठे, हजाम को बुला लो, तारा सवाल और खुद ही शुमार। देखिए ये हंसने के लिए बच्चों के मैंने तो बात क्या कह रहा था कि अल्लाह ने कहा बता न बातन हसनन। अब अगर इजाजत हो तो कुछ कुरान की बात तो कुछ कह ही रहा था, अब इसमें तफसीर का कुछ सहारा लो। अल्लामा तंतावी जौहरी मिस्री साबिक जामे अजहर के साबिक वाइस चांसलर, उनकी लिखी हुई तफसीर कुरान जिसका नाम है अल जवाहिर 30 अजीम जखीम जिल्दों में शाया हुई। अल्लाह का शुक्र है मेरी लाइब्रेरी में 30 जिल्द पढ़ के इस आयत की तफसीर में, इस आयत की तफसीर में जब मरियम की माँ ने नद्र के मुताबिक अपनी बच्ची को गोद में लिया, ले जाकर बैतुल मुकद्दस में रख दिया, तो उस वक्त अल्लामा तंतावी लिखते हैं कि 28 ऐसे आदमी वहां थे जो रात दिन या इबादत इलाही करते थे या तौरेत के नुस्खों को अपने पाक व पाकीज़ा कलम और रोशनाई से और कागज पर लिखा करते थे। यानी वो एक तरह से इबादत गुजार भी थे और तौरेत के नुस्खों को लिखकर दुनिया में फैलाने का काम भी अंजाम। तो जब मरियम की माँ ने मरियम को रख दिया, कहाँ रख दिया? बैतुल मुकद्दस में, और कहा दूनुकुमुन नज़ीरा कि इससे अब मेरा कोई मतलब नहीं है, ये बच्ची मेरी नज़रशुदा है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। यानी अब ये तो है ये अल्लाह की अमानत ले ले और परवान चढ़ाए। तो अब वो फख्र के लिए, क्योंकि मरियम के बाप इमरान जो थे वो अपनी कौम के पेशवा थे और सरदार थे और बैतुल मुकद्दस के मुतवल्ली थे, तो सबको ये शरफ हासिल करने का शौक हुआ कि अगर हम इस बच्ची को पाल देंगे तो आइंदा जमाने में हमारे लिए नाज करने का हक होगा कि इमरान जो हमारे वो मुतवल्ली बैतुल मुकद्दस के थे और हमारे सरदार और पेशवा थे और इबादत गुजारों में सबसे अच्छे इबादत गुजार थे, उनकी बेटी को हमने परवान चढ़ाया। जब आपस में ये कश्मकश बढ़ी तो तय हुआ, कुरान बोल रहा है कि तय हुआ कि ऐसे कोई नहीं ले सकता है, कुरा डाला जाए। तो पूछा गया कुरा कैसे डाला जाए? कहा दरिया किनारे अपने अपने कलम सब लोग लेके चले और नाम अल्लाह का लेकर कलम को दरिया में फेंक दो, जिसका डूब जाएगा इसका मतलब होगा कि वो हकदार नहीं है, और जिसका कलम पानी पर तैरता रहेगा वो हकदार हो जाएगा। तो 8 इबादत 28 इबादत गुजार वो एक जकरिया के सब चले और सब ने अल्लाह का नाम लेकर अपना कलम दरिया में फेंक दिया, सबके कलम डूब गए। जकरिया का कलम मूसा के, जकरिया का कलम मूसा के संदूकचे की तरह पानी के ऊपर तैरता रहा। सबने तकबीर बुलंद कर दी कि जकरिया ही मुरब्बी अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हो गए। तवज्जो का तारीफ हो। अब एक जुमला अपनी तरफ से कहता उस किताब में नहीं है, अपनी तरफ से यह कहता हूँ कि वही लिखने के कातिबे वही होने के शरफ पर इंसान को नाज नहीं करना चाहिए। जब वही तो लिखने वाले थे, 28 कलम डूब गए, इसका मतलब यह है कि वही का लिखना कोई कमाल नहीं। तवज्जो फरमाइए, अगर कमाल होता तो वो भी कलम तैरते। अच्छा जकरिया की गोद में अब आगे था, कुरान बोल रहा है कब फलाह जकरिया। अभी आज मैं गया था मकतबे रसूलुल आज़म में मुताला करने, तो कुछ किताबें देख के आया। अब इंडिया की किताब का नाम क्या बताऊं, अब यही से सुन लिया कीजिएगा कि यही मौजूद है, जिसका दिल चाहे देख ले। तो आप सुनाता हो जीजान गिरामी कि तारीख अबुल फिदा और तारीख तबरी और तारीख मुरुज ज़हब में लिखा है कि जब अब्दुल मुत्तलिब के मरने का वक्त आया, उस वक्त
मुबारक 8 साल से आगे नहीं बढ़ा था, तब अब्दुल मुत्तलिब को यह फिक्र हुई कि मेरा ये यतीम पोता ऐसे दुनिया के माहौल में रह जाएगा तो ये इसकी शान और अजमत जो है पोशीदा रह जाएगी। तो पहले अपने सारे बेटों को बुलाया और इससे बैठाए, जैसे ये मसनद है या ये बिस्तर अब्दुल मुत्तलिब का, यूं सब बैठ गए। तो पहली बात तो ये कहा, नजर देखा अब्दुल मुत्तलिब ने और कहा कि ये अबू तालिब, कहा अब्बा हाजिर, कहिए क्या? कहा देखो ये मेरा पोता मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है, इसकी शान अल्लाह ने बड़ी अजमत वाली बनाई है। मैं अपने इतने बच्चों में से किसी को इसका नहीं पाता कि इसके हवाले, इस बच्चे को उनके हवाले कर दो। तो मैं अपने किरदार और अकीदे और खूब रंग सब पाता हूँ, लिहाजा ये अमानत इलाहिया मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, इसके हक के साथ इसको पालना। तवज्जो फरमाइएगा एक बार। फिर उन्हीं किताबों में लिखा है कि इस अमल के बाद अब्दुल मुत्तलिब ने फिर अपने भतीजे को, पोते को हक दिया कि ये मेरे लाल देखो इतने तुम्हारे चचा बैठे हैं, जिनको तुम पसंद करो उनकी गोद में जाके बैठ जाओ। तो पैगंबर इस्लाम ने एक नजर यूं डाली सब पर और दौरा किया और अपने चचा अबू तालिब की गोद में जाके बैठ गए। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि नहीं, अब इस पर बात तमाम नहीं होती, अब कुरान डाला जाए, जिसके नाम कुरान का तलवार तो कुरान डाला गया। तो अबू तालिबी का नाम कुरान में भी निकला। गौर किया दीदार गिरामी या नहीं गौर किया? मरियम की परवरिश का मसला आया तो एक कुरे पर बात तय हो गई और यहाँ बाप की वसीयत भी है, नबूवत का इंतखाब भी है, कुरान भी है। कहिए कितने बात मैंने कही, कितनी बात कही? नबूवत का इंतखाब, जिसके यहाँ नबी 40 साल का होता हो नबी, हमारे यहाँ नबी तो नबी पैदा होता है। ये बात कौन छेड़ेगा? हमारे यहाँ नबी पैदा होता है। 10-20 बात की कोई नबूवत मेरी शेरवानी है, देखा हंसे आप लोग, नबूवत कोई मेरी शेरवानी है कि जब चाहा उतार दिया, जब चाहा पहन। देखा नहीं अभी आपके यहाँ घर पर क्याम नहीं था, शेरवानी दूर थी ना, जब यहाँ आना हुआ तब बदन पे डाला, रास्ते में बटन लगा लिया। तो अब मालूम होता है कि इनके यहाँ नबूवत जो है शेरवानी है कि जब चाहे अल्लाह बटन खोल के उतार के रख दे और जब चाहे पहना दे। नहीं, वो नबूवत वो इलाही मनसब का जामा है कि जब इस सर पे पैकर इंसानियत को जिस्म अता करता है तो उस जिस्म में नबूवत का जामा पहना ही कर पैदा करता है। अगर पैदा न करता तो मरियम ही की गोद में ईसा ये न कहते इन्नी अब्दुल्ला आतानी किताब बजा सलवात फरमा बात कहाँ पहुँच जाते हैं। तो अब वो बात के 3 रह गई। कौन 3? नबूवत का इंतखाब, बाप की वसीयत बेटों को, और कुरान इलाही इंतखाब। अब मेरी तरफ फिर मुतवज्जो हो जाइए और इंशाअल्लाह ये सन्नाटा जो 2 मिनट मालूम हुआ ये नहीं रह सकता है। मेरा इत्मीनान है किस बात की बिना पर। अब पहले तक आप मुताबिकत कीजिए। मुताबिकत किस बात की? मरियम को देखिए। मरियम क्या है? मासूमा है, सिद्दीका है, ताहिरा है, अपने कौम कबीले के सरदार की बेटी है। पैदा होने से पहले उनके बाप मर चुके थे, नहीं तवज्जो फरमाया। तब उन मरियम के पैदा होने से पहले उनके बाप मर चुके थे और उनके बाप अपने कौम के सरदार थे और अल्लाह के घर बैतुल मुकद्दस के मुतवल्ली और निगरां थे। तवज्जो का तालिब हो। ये जितनी खूबी मैंने मरियम की बयान की वही सारे खूबियां पैगंबर में भी है। मासूम भी है, ताहिर भी है, सिद्दीक भी है। लफ्ज़ पर गौर कीजिए, ये भी अपने कौम के सरदार के बेटे हैं। इनके पैदा होने से पहले इनके बाप का इंतकाल हो चुका था। लफ्ज़ और आगे आप कहिए बढ़ा दूं, मरियम के यहाँ कोई मनसब नहीं है, रसूल के सबसे बड़े मनसब को लेकर आए हैं। तो बेमनसब वाली लड़की की परवरिश हो रहा हो तो मासूम गोद ढूंढी जाए। नहीं तवज्जो दिया। गैर मसबदार बेमासूमा लड़की की परवरिश की बात सामने आए तो खुदा मासूम गोद जकरिया की गोद को मुंतखब करे। और जो सबसे बड़े रसूल की परवरिश का मसला है तो अल्लाह काफिर की गोद चुन ले और काफिर की गोद में रखेगा, कुरान फरियाद करेगा। ये पालने वाले ये कौन सा इंतखाब है? आवाज दी कुदरत ने, सुनो। अगर मेरी नजर में जकरिया का रुतबा अबू तालिब से बुलंद होता तो इमामत उनकी नस्ल में रखता, इनकी नस्ल में।
ताहिरा, रसूल ताहिर, मरियम सिद्दीका, रसूल सिद्दीक, वो भी यतीमा, ये भी यतीम, उनके भी पालने का मसला बाप के अलावा माँ के अलावा दूसरे के हवाले है। कुरान डाला और अब आप कहेंगे कि अब्दुल मुत्तलिब के लिए कौन इस्लाम की सनद है? मैंने कहा इस्लाम की एक सनद तो अब्दुल मुत्तलिब की यही है कि उन्होंने भी नज़र की थी कि 10 बेटे हो जाएंगे तो एक को नज़र कर दूंगा। तो वो नज़र पूरी करने पर कुर्बानी की जो रस्म आई, तो जो कुरान से जो 100 ऊँटों का निकला, तो अब एक दलील और दे देता हूँ कि 100 ऊँट निकले तो आज भी इस्लाम में सुन्नते अब्दुल मुत्तलिब ही राइज है। इस्लाम जिसको हम कहते हैं, जब रसूल ने पैगाम हक पहुँचाया और एक इंसान का खूबहा जब तय हुआ, तो अल्लाह ने उसका कोई बयान नहीं दिया कुरान में। अब्दुल मुत्तलिब ने जो तय कर दिया था वही खुदा ने कबूल कर लिया। अब मालूम हुआ कि बात कानून इलाही कुरान में ऐसे है जो अब्दुल मुत्तलिब और अबू तालिब के बनाए हुए हैं। ये मानने वाले क्या काफिर के कानून को भी तू अपनी दीन की किताब ये बात आवाजें हो गई कि मरियम के पालने वाले जकरिया, नई बात है, कुरान बोल रहा है ना, कब पला जकरिया। और अल्लाह ने कहा कि जकरिया का पला इशारा बाद में, पहले तो आपने ही कहा कि हम बता नबातन हसना, सबसे पहले अपनी तरफ निस्बत दी कि हमने परवरिश की, हमने नशोनुमा किया, हमने तरबियत की। तो मैंने कहा पालने वाले आदाब जमाने कहा कि हद सुनो। तो अब जब मरियम के बारे में कहा तो कहा मैंने कि तेरे हबीब के पालने वाले ने भी बड़ी मेहनत की है। फिर तो खामोश है, कहा खामोश कहा हूँ, नहीं कहता आलम यजीद के यतीमन फावा। तुमने यही तो आयत पढ़ी, वल्लज़ीना आमनु व नसरू उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। जिन लोगों ने उन लोगों को यानी मक्का वाले मुसलमानों को मदीना वालों ने जब पनाह दी, तो मदीना वालों के लिए खुदा कहता है कि वो सच्चे मोमिन है। और जब अबू तालिब को पनाह देने, जब पैगंबर को पनाह देने वाले की बात आती है, तब मुअम्मे में अल्लाह नहीं कहता कि उन लोगों ने जिन लोगों ने उन लोगों को, खुले लफ्जों में कहता है कि अलम यजीद के यतीमन फावा। हे पैगंबर क्या आप यतीम नहीं थे? मैंने आपको पनाह दी। मैंने कहा कि कौन किला बनाया था, कौन सा घर था, कैसा बिस्तर था, कैसी निगरानी थी, कहा मैं निगरानी क्या करता, अबू तालिब को बना दिया था। देखो तो सैकड़ों मुसलमान रहे उहद के मैदान में, पैगंबर के दांत जख्मी हो गए, मगर एक अबू तालिब जब तक जिंदा रहा कोई उनका की मन की बात है। बहुत सी बातें सामने से डर लगता है कि हकीकत को कहूँ तो कहीं लोग मेरे ही खिलाफ हो जाए। रवायत किताबों की जो होती है वो अपने अकीदे से लोग लिख गए हैं ना, नहीं गौर किया। हुजूर के दांत टूटने की जो रवायत है, कोई नाराज हो अपने घर, दांत टूट के गिर नहीं गए, दांत पर जर्ब आई, खून बहा। आप पूछेंगे किस अकीदे, मैंने कहा जो रवायत अकीदे से टकरा जाए वो रवायत काबिल कबूल नहीं हुआ करती। अकीदा क्या है, एक छोटी सी बात है। अभी 1 महीना पहले कुर्बानी का दिन गुजर गया, तो कान कटा हो बकरा तो नहीं होगी कुर्बानी, सीन टूटी हो तो नहीं होगी। लफ्ज़ पर गौर करें तो हमारे अकीदे की किताब में लिखा है कि नबी किसी रूहानी या जिस्मानी ऐब में मुब्तला नहीं होगा। तवज्जो करता है, दांत टूट जाए अगर बकरे का तो कुर्बानी नहीं होगी, दांत टूट के गिर गए होते तो ये ऐब में दाखिल हो जाता, या तो उस दिन हुजूर शहीद हो जाते। और करें अब किताब में न देखिएगा कि उस किताब में लिखा और उस किताब में लिखा और उस अकीदे से टकरा गए। उनके अकीदे में ऐबदार नबी नबी हो सकता है, हमारे यहाँ ऐबदार नबी नबी ये बात वादे कर दिया। मैं ये इसका इनकार नहीं करता कि नहीं, मगर वो जो बुनियादी गुफ्तगू थी कि सैकड़ों की मौजूदगी में हुजूर जख्मी तो हो गए ना, और एक अबू तालिब की मौजूदगी में किसी की मजार नहीं जो उनके रोए को छू देता। अरे रोआ तो दरकिनार, रोआ तो दरकिनार, उनके साये के पास भी नहीं आया। अगर इस अकीदे के साथ बोलता हूँ कि जिसमें मुबारक का साया नहीं था, मगर उर्दू मुहावरे में मैंने कहा साये तभी, और आगे इस साये के बाद तक जुमला कहूँ फिर ही मैंने सरवाद पर पानी नहीं पीते। हैदराबाद में कुछ लोग इसी को तो नाराज हो गए थे। मिंबर वो जगह है अदब एहतराम की जहाँ न पानी न चाय कुछ नहीं चलती। तो बात बहरहाल
खांसी क्यों आई? मैं ऐसे इलाके का रहने वाला हूँ जहाँ ये एससी और गरीब मौलवी हूँ। इसका असर पड़ना जरूरी है अजीज़ाने गिरामी। तो बात से बात पैदा हो जाती है, कहाँ की बात कहाँ, गरीब हो या अमीर हो। देखिए एक तसव्वुर है, दौलत डॉलर दिनार दिरहम रुपये के सूरत में एक तो दौलत वो है, और एक दौलत इल्म ईमान तकवा अमल ज़ुहद इसका नाम है। अब ये दुनिया से पूछने की जरूरत है कि ये सिक्के वाली दौलत बड़ी है या मोहब्बत अहले बैत वाली। अब अगर आ गई है बात तो फिर इस पर और खुश हो रहे हैं कि कुछ लोग कमजोर वो थे जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का के माल गनीमत लूट कर दौलतमंद बनने की कोशिश में थे। उनको तो हुकूमत के मिजाज वालों ने मुसलमान रखा, और कुछ खुश नसीब ऐसे थे जो नबी और रसूल को पाल पाल कर रसूल और नबी को पाल पाल कर और इमामों को अपनी गोदियों में परवान चढ़ा चढ़ा कर और इस्लाम को दुश्मनों से बचा बचा कर और पैगंबर को बिस्तर पर, क्यों मैं बिस्तर कहूँ, ज़ैनुल आबिदीन यूं कहता जैसे मुसलमान कुरान को जुज़दान में रखता है वैसे अबू तालिब अपने बिस्तर के जुज़दान में नबूवत। आ गई थी वो बात साये वाली, तो याद आ गई बात। अल्लामा शाह अब्दुल हक ने मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वत जिल्द अव्वल मतबूआ नौलकिशोर प्रेस कानपुर इंडिया सन 1896 की छपी हुई किताब, उसमें जिक्र सिफात रसूल लिखते हुए लिखते हैं कि अल्लाह ने पैगंबर के जिस्म का साया इसलिए नहीं रखा, यानी आपके जिस्म में साया इसलिए नहीं था कि अगर जिस्म का साया खुदा देता तो वो साया जमीन पर पड़ता, और जब जमीन पर पड़ता हुजूर गुजर जाते, साया जमीन पर पड़ता जाता। मुमकिन है पीछे से कोई काफिर आता तो वो साए पर कदम रखता हुआ चला जाता। अब शाह साहब को कौन दिल्ली में जाके जगा के पूछे? नहीं समझा दीदार गिरामी? शाह साहब को दिल्ली में जाके कौन जगाए उनके तुरबत के करीब कि उठिए उठिए शाह साहब, साए का तो अल्लाह इतना एहतराम करे कि काफिर का पैर वहां न पड़े। इसमें रसूल को काफिर की गोद में दे दिया। इसका दिल चाहे पढ़ ले, ये तो हमारा भी अकीदा है, आपका भी सबका है कि नबी के जिस्म का साया नहीं था। अब वो वजह भी बता रहे हैं क्यों नहीं था, कि अगर साया होता जमीन पर पड़ता और काफिर वहां से गुजरता, साया गुजर जाए काफिर वहां पैर रख दे तो तौहीन जिसमें नबी हो। साया पड़ता काफिर पैर रख देता तो तौहीन जिसमें नबी होती, और काफिर ही की गोद में अल्लाह ने रख दिया। इन समझदारों से ज़ैनुल आबिदीन कैसे समझे कि कौन बात सही है? बात सामने की है। अच्छा आ गई अब वो नजर की आयत मैंने पढ़ी थी ना, इमरान रब्बैनी नजर तो रखा माफी पत्नी मुहर्रर, तो अब वो मैंने दिन में कहा कि जामिया गया था वहाँ मकतबे रसूलुल आज़म में, तो सीरत हलविया की कुल जिल्दें वहाँ मौजूद है, जाके देखिए कि जैसे जुज़दान आमिना में रसूल थे वैसे जब जुज़दान फातिमा बिनते असद में अली थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि पैगंबर इस्लाम बैतुल शरफ है अबू तालिब में दाखिल हुए। कमसनी का जमाना, लिखने वाला लिखता है कि पैर उलझे दामन में, अबू तालिब के घर के सहन में एक खजूर का दरख्त था जो सूख गया था। जैसे पैर ये उलझा हुजूर का तो आदामन रिदा से तो आप गिरने लगे, मैं नहीं कहता किताब वाला कहता, गिरने लगे तो आपका गैर इख्तियारी तौर पर हाथ यूं दरख्त पर पड़ गया। जैसे दरख्त पर पड़ा फौरन ताजा हो गया और फौरन फूल लगे और फौरन फल लगा और फौरन पक गए और फौरन टप के फातिमा बिनते असद चुन चुन के भतीजे को खिलाती जाती है और कहती जाती है कि खुदा जब मुझे बच्चा देगा तो मैं अपने इस भतीजे का उससे ताबेदार बना दूंगी। नहीं ध्यान पहुंचा, माफ कीजिएगा नौजवानों को, कहा बोल गया। मरियम के यहाँ जब ईसा पैदा होने वाले थे तब अल्लाह ने कहा हुज्जी अलैके बिजिद्दीन नखला, कि
कि ए मरियम जाओ जाओ खजूर के खुश्क दरख्त के पास। और जब पैदा हो गए ईसा कुछ भूख मालूम हुई तो कहा कि अब दरख्त हिलाओ। तो खुश्क दरख्त को मरियम ने हिलाया तो रतबे ताजा गिरे। यहाँ अभी ईसा की विलादत नहीं हुई। नहीं समझे? फखरे ईसा अली इब्ने अबी तालिब की। मरियम का 1000 दर्जा ज़ैनुल आबिदीन तस्लीम करता है, मगर कैसे मैं तकाबुल करूं? मरियम सब कुछ सही, बड़े रुतबे वाली, ये क्या वजह है कि कभी आपने गौर किया मरियम कुंवारी क्यों रह गई? नाराज ना हो भाई, जिम्मेदारी है, कुरान से अगर सबूत न दूं, मरियम कुंवारी क्यों रह गई? गौर किया कभी? उस जमाने में दुनिया क्या नौजवानों से खाली थी? मर्द नहीं उनके सीनों साल के थे। जकरिया यहिया उनका किसी नौजवान से नहीं कर सकते थे। मजबूरी ये थी कि खुदावंद आलम ने मरियम को ताहिरा सिद्दीका, मरियम को ताहिरा मासूमा बनाया था। जकरिया और यहिया के अलावा उस वक्त दुनिया में कोई मासूम नहीं था और ये शरई मसले के एतबार से उनसे इनका अक्द नहीं हो सकता था। तवज्जो का तारी वजीदान गिरामी, अब गैर मासूम थे, मर्द बहुत थे मगर सब गैर मासूम खताकार थे। अक्द अगर हो जाता तो जानते बरबिना जौजा होने के इनके ऊपर गैर मासूम शौहर की इताअत वाजिब हो जाती। गैर मासूम शौहर की इताअत मरियम पर वाजिब हो जाती। अब रोज हदीसे के साथ पढ़ते हैं जो तहरकुन ततहीरा, तहारत अहले बैत की सनद कुरान में मौजूद है। क्या कहा मैंने कि मरियम की शादी इसलिए नहीं हुई कि उस जमाने में उनके सिनोसाल का कोई मासूम मर्द नहीं था। तवज्जो का तारी वजीदार, अब अल्लाह ने नहीं चाहा कि गैर मासूम के अक्द में जाए और बीवी होने की बिना पर उसकी इताअत करे। जो खुदा एक औरत मासूमा को किसी गैर मासूम की इताअत पसंद नहीं करता, वो सारे अहले बैत को यूं ही कैसे छोड़ देता कि गैरों के हाथ पर बैत। समझे क्या कहा मैंने? बढ़ाते जा रहे हैं, तोड़ तोड़ के फेंकते जा रहे हैं। रखो अपने हाथ, हम मासूम हैं, हम तय्यब व ताहिर हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे हाथ पर हाथ रख दो तो जन्नत की जिम्मेदारी हम ले दो, तुम कौन? तो कल एक बात आई थी, कहते कहते रह गया या जन्नत की जिम्मेदारी हमारी, वो जागीर वाली बात, हवेली वाली कह के रह गया न तजबूर। तो अब मैं पूछूं, जो कैसर साहब के मकान पर मजलिस होते हैं, मेरे ऐसे जाकिर को कैसर साहब अगर बुलाए तो खूब वसी जगह रहे, नहीं भाई? जब बड़ा जलसा हो, बड़ा ताकिर होता है तो मैदान भी वसी होता है। नहीं गौर किया? जाकिर अगर उम्दा हो, बड़ा हो, अजमत वाला और बयान भी अजमत वाला करना हो तो घर में नहीं होता, गदीर के मैदान में। मजमा सामने रहे, इत्मीनान से सुने, किसी को कोई घबराहट ना हो कि बोल रहा है कौन, यूं देखने की कोशिश कर। एक सामने 1,20,000 का मजमा। मौलाना शेख मोहम्मद जकरिया का दहलवी सहारनपुर मुजफ्फरनगर, वो अपनी किताब हज्जतुल विदा व उमरातुन नबी बैरूत की छपी हुई अरबी जबान की सफा 372 पर लिखते हैं कि 1,20,000 का मजमा था गदीर के मैदान में। अब इतना बड़ा हाल तो बनाना मुमकिन नहीं था, इसीलिए सारा तो कहा की बात कहाँ पहुँच जाती है। तो वो जन्नत की बात आ गई कि आपका घर है, मजलिस का नाम तो सुना, फर्ज कर लें कि हो रही है और कोई ऐसा आदमी गड़बड़ हो, आना चाहे कैसर साहब रोक दें तो है कोई कानून जो कहे कि नहीं जाएगा ये जरूर, और किसी को लोग मना करना चाहे और कैसर साहब आने की इजाजत दे दे तो है कोई दुनिया की ताकत जो रोक दे? नहीं समझे? तो अब देख जरा 1400 से मुसलमान अकड़ का तो जायजा लीजिए। कहते हैं कि ज़ैनुलाब्दीन जन्नत में नहीं जाएगा, ज़ैनुलाब्दीन जन्नत में नहीं जाएगा। ज़ैनुलाब्दीन खामोश बोलता ही नहीं, जब बोला तो ये कहा कि अरे भाई ये पहले बताओ कि जन्नत में तुम्हारा भी कुछ हक है? नहीं समझे? पहले तुम साबित तो करो कि जन्नत में तुम्हारा कुछ हक है। जर खरीद जन्नत तुम्हारी है, मीरास है, बुजुर्गों से पाई हुई है, तुम्हारी हवेली है, तुम्हारी जागीर है, तुम्हारे जमींदारे में है। तो कहा कि कुछ नहीं, हम तो खुद ही कह रहे कि रज़ी अल्लाह राजी हो जा, राजी हो जा। नहीं गौर क्या जाने गए? तो मैंने कहा कि जब आपका कुछ वहाँ है ही नहीं तो आप मुझे जाने से क्यों रोक रहे हैं? छोड़ो, हटो, मुझे जाने दो। अब ये ज़ैनुलाब्दीन नहीं बोल रहे हैं, अबू तालिब बोल रहे हैं कि जब तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं, न मीरास है,
न मिल्कियत है, न खरीदी जायदाद है, न कहीं से पाई है, न किसी ने हक दी है। मेरा तो हाल ये है कि मेरा बेटा इसका बांटने वाला है और मेरे पोते इसके सरदार हैं। हम दादा पोते का मसला आपस में समझ लेंगे। नहीं कर क्या जाएगा? हम दादा पोते का मसला है। जन्नत जब तुम्हारी गुजरे तुम तो अभी राजी हो जा कहने में, और यहाँ राजी हो चुका है। अगर यकीन ना आए तो सुनो, तुम अभी कह रहे हो कि राजी हो जा, और यहाँ मामला है कि राजी हो चुका नहीं है, मर्जी दे चुका है, नफ्स ले चुका है। अब जन्नत भी उसकी नहीं रही, अब जन्नत मेरे बेटे और पोतों की है। तुम कौन हो? हटो रास्ते से। देखो वो मेरे बेटे खड़े हैं, वो मेरे पोते खड़े हैं। अगर मुझे जाने देंगे जब चला जाऊंगा, नहीं जानेंगे तो तुम्हारा जो ख्याल है वही सही मान लो। तब उधर से ये बट रहा हिस्सा कैसा दिया, अब फर्द कर लें इनके अब्बा आ जाए तो कह देंगे कि इनको मत दीजिएगा अब्बा को। ये तो बेचारे चाहेंगे कि कोशिश करें कि बांटने वाले कहेंगे भाई देखो इनकी बुजुर्गी का लिहाज करो, इनको पहले जो ज़ईफ हो चुके हैं देर तक यहाँ खड़े न रहना पड़े। तो मेरा ज़ाती अकीदा है कि जब वाली जन्नत बांटेंगे और उनके बाप सामने आ जाएंगे तो कहेंगे कि सरमानो बुजुर्ग का भी रोको, ये तो हमारे वालिद बुजुर्गवार है, इन्हीं का तो कमाल है कि नबूवत और विलायत महफूज रखे। तो कहा कि कलम को दरिया में डाल दिया गया, सबका कलम डूब गया और यहाँ अब्दुल मुत्तलिब है कुरान डाल रहे हैं। और अब पढ़िए किताब का नाम बताता हूँ, अल्लामा सैयद अली हमदानी अपनी किताब मवद्दतुल कुर्बा की पहली मवद्दत में लिखा कि जब अबू तालिब के मरने का वक्त आया तो आपने अपने बेटे अली इब्न अबी तालिब से कहा कि बेटा देखो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल देना, कफन पहनाया ना, और मुझे मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब की कब्र में दफन करना। ये एक नुक्ते की बात सुनाया मैंने आज पहल मर्तबा। क्या कहा कि मुझे मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब की कब्र में दफन करना, करीब नहीं। तो इसमें फर्क है। करीब में हम भी वसीयत करते हैं कि अब्बा दादा या अगर बहुत है गुंजाइश तो करबला ले जाना, हजरत हरम के अंदर, हायर हुसैनी के अंदर नजफ ले जाना। ये वो कहते हैं कि मुझे मेरे बाप अब्दुल मुत्तलिब की कब्र में दफन करना। मेरे बेटे इंतकाल हो गया, वक्त मुकर्ररा पर पैगंबर से किसी ने आगे कहा, अली नबी ने कहा कि अली जाओ अपने बाप को गुस्ल दो, कफन पहनाओ। अब ये मुख्तसर करता हूँ बात को। अब मैं पूछूंगा कि अगर काफिर के यहाँ कहीं भी इंडिया में जब कोई काफिर मरता है तो मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई मुसलमान गुस्ल देने जाए। मैं गौर क्या दीदाने गिरामी, कोई मुसलमान किसी काफिर के यहाँ गुस्ल कफन देने नहीं गया। उसके अकीदे वाले आए और जैसे तरीके से ले गए। अगर ये काफिर मरते, अरे मोमिन अगर किसी मैयत को नहला दे तो कम से कम मैयत को मुसलमान तो माना ही जाएगा, और जिस मैयत को अमीरुल मोमिनीन नहला दे, फरमाइए जिस मैयत को अमीरुल मोमिनीन छू दे किसी को तो जन्नती हो जाए। तो नहलाया, अब ले गए जब कब्रिस्तान यानी अब्दुल मुत्तलिब की कब्र, तो वो अब भी दस्तूर है जिसका दिल चाहे जाके देखे। कब्र खोदी गई, पत्थर ऊपर रख दिए जाते हैं। तो जब कब्र का वो पत्थर ताबीज़ कब्र कहते हटाया गया तो देखा अब्दुल मुत्तलिब किबला रू लेटे हैं। अब्दुल मुत्तलिब किबला रू लेटे हैं, और ऐसे मालूम हो रहा है कि अभी अभी इनको नींद आ गई, यानी जिस्म जैसे बरसों बाद वैसे ही महफूज था। और किबला रू अब समझ में आया अबू तालिब ने ये वसीयत क्यों की थी कि मुझे मेरे बाप की कब्र में, कि ये मुझे काफिर कहने वाले आंखों से देख ले कि मैंने ही अपने बाप को दफन किया है। अगर मैं मोमिन ना होता तो किबला रू इनको ले जाता ना, नहीं तो समझा दीदाने गिरामी। और मेरी ही ये किबला रू लेटाने की सुन्नत है जो सारे मुसलमान दुनिया में अब किबला रू लेटाए जाएंगे। और दूसरी मसलहत ये थी कि ये दुनिया देख ले कि मेरे बाप इतने पक्के मोमिन हैं। अब मोमिन ही नहीं है, मान लो हाफिज कुरान है, मान लो हुज्जत खुदा है, मान लो नबूवत के दर्जे पर है। क्यों कि अगर आम मुसलमानों में होते तो लाश को सड़गल जाना चाहिए था, और जैसे ये लाश महफूज है, तुम्हारा दिल चाहे क़यामत तक कभी खोद के देख लेना। मैं भी तो ये दुनिया है कि अभी किसी की दीद में, कभी किसी के
मुखालफत में, कभी किसी की हसद में, कभी मोमिन को काफिर कह दे, काफिर को मोमिन कह दे, फिर कहूँ जाहिल को आलिम कह दे, आलिम को जाहिल कह दे, फिर कहता हूँ बदकार को मुत्तकी कह दे, मुत्तकी को बदकार कह दे। ये है दुनिया वालों का मिजाज, मगर कुदरत और नबूवत का ये मिजाज नहीं। उसका मिजाज ये है कि अगर अपने घर का भी बुरा है तो उसे बुरा कहता है, नहीं तो अपने घर का भी बुरा है तो उसे बुरा कहते हैं। और दूर का रहने वाला अगर अच्छा हो तो अपना बना लेता है। बात समझ में है? अगर दूर का है तो अच्छा है। जैसे सलमान मिन्ना हलील भाई, ईरान कहाँ और अरब कहाँ, मक्का कहाँ, गौर कीजिएगा, और शिराज कहाँ, और वहाँ से चले गए, नेक बन गए। तो कहा नबी ने मिन्ना हलील भाई, और अपने कुनबे का था, बुजुर्ग था, चचा था, बुरा बना तो कह दिया कि चचा के रूबरू खड़े होके कह दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबीला, नहीं कहा क्या रूबरू खड़े हो गए। चचा इस मसले में कोई रू रियायत नहीं है। अगर आप अच्छे होते तो सलमान की तरह आपकी भी तारीफ कर देता। ये मिजाज नबूवत है कि अपना पराया नहीं देखता, अच्छा और बुरा देख। अच्छा, तो आखिरी मिसाल में सुने वो जो अभी कहा कि मुझे मेरे बाप, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसका दिल चाहे कभी भी खत लिखकर टेलीविजन रेडियो से पूछ ले। मैं ऐसे माहौल में रहता हूँ जहाँ मेरे अकीदे के मुखालिफ सब हैं। अकेला मेरा घर 20 साल से, आगे पीछे और लोगों के जो मकान है जो इस अकीदे के नहीं है, मगर ताल्लुकात ऐसे हैं। मैं उनसे पढ़ता हूँ, उनके बच्चे आला किताबें मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं। ये क्यों कहा, अब सुनिए। जब ताल्लुकात ऐसे हैं तो मेरे यहाँ कोई खुशी की तकरीब होती है तो अपने बुजुर्गों को यानी असातिज़ा को जब तक जिंदा रहे दावत दी। और अब जिनको मैंने पढ़ाया है जब उनके यहाँ कोई तकरीब होती है तो मुझे बुलाते हैं। तवज्जो का तारी वजीदार गिरामी, तो जब मुझे बुलाते हैं तो खाना ही खिलाने तक महदूद रहती है बात। यानी कम से कम पड़ोस में 10 मेरे शागिर्द आए थे जिनको लोग वहाँ भी कहते, मैं नहीं कहता, मैं मुसलमान कहता हूँ। तो 10 की शादी में मैं गया और अक्द के मौके से पहले ही पहुँच गया, मगर कभी उसने उस्ताद समझ के भी मुझसे नहीं कहा कि हुजूर आप ही अक्द पढ़ दे। कभी भूल कर भी नहीं कहा मुझसे कि हुजूर आप अक्द पढ़ दे। और जबकि वो जानते हैं कि जो कुरान हमारे पास है वही इनके पास है, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे पास है वही ला इलाहा इल्लल्लाह इनके पास भी है, और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ अलीउल्लाह में जरा सा इख्तिलाफ हो गया। इतने जुज़वी इख्तिलाफ की बिना पर कभी 10 में से किसी ने मुझसे निकाह पढ़ने को नहीं कहा। और इसी को बदल दीजिए तो उनकी मैयतों में भी गया, मेरे यहाँ भी मैयतों में आए। न कभी मैंने अपने बाबा दादा मरे तो उनसे किसी से कहा कि नमाज जनाजा पढ़ दीजिए, नहीं गौर क्या दिया। यानी सारी दुनिया में एक साथ दोस्ती और ताल्लुकात को निभाया जा सकता है, खाने में, पीने में, कारोबार में, तिजारत में, सफर में, हजर में, आने में, जाने में, यहाँ तक के जमात में भी एक साथ जमा हो सकते हैं, हज और जिहाद में भी। लेकिन ये 2 चीजें हैं, इब्तिदाई जिंदगी का मरहला इंतहाई, इसमें अकीदा देखा जाता है कि हाँ अकीदे वाला की नहीं, नहीं गौर किया। अगर शिया घर में निकाह हो तो शिया ही पढ़ाएगा, मुसलमान के हो तो मुसलमान पढ़ाएगा, शिया नहीं लुत्फ आया दीदाने के नामे। अरे जुज़वी इख्तिलाफ की बिना पर तो हम उस्ताद होकर कभी उनका निकाह न पढ़ सके। ये एकदम मुकम्मल कुफ्र और ईमान का मामला हो। और कैसे रसूलुल्लाह राजी हो गए, और राजी नहीं हुए जब तक के जिसका निकाह हो अपना वकील न बनाए। नहीं लुत्फ आया। मेरा निकाह होने वाला जब था तो मैंने जब कहा हाँ बिस्मिल्लाह ने उस्ताद तब न पढ़ा, हम चुप रह जाता सवेरे तक। तो जहाँ बारात गई थी सारा खाना ठंडा और बेकार हो जाता और घर वाले नाराज हो जाते और बाराती मेरे भी नाराज होके चले। नहीं भाई, जब मैंने बिस्मिल्लाह कहा तब न तब हुजूर बिस्मिल्लाह कही ये है अबू तालिब की आजमत। नहीं गौर किया, जिस सारी कायनात को बिस्मिल्लाह कराए रसूलुल्लाह, एक पालने वाले। मैंने देखा कि जब आदम और हव्वा को तूने पैदा किया तो तूने निकाह पढ़ा इन लफ्जों में, कैसे क्या याद मुस्कुन अंत वज़ौजो का, बस कह दिया। नहीं वज़ौजो का याद मुस्कुन अंत वज़ौजो का, याद तुम तुम्हारी बीवी, अल्लाह ने बीवी कह दिया, हो गई हव्वा बीवी, लफ्ज पर गौर किया। तो इतनी बड़ी कायनात में फरिश्ते थे, जिब्रील थे,
मिकाइल थे और भी लातादाद फरिश्ते थे। अरे ईसा जिंदा, एक नबी मौजूद, खिद्र है आबे हयात पर, इलियास सहराओं में है, किसी को भेज देता, तेरे रसूल का निकाह पढ़ देता। ये मुसलमान जिस पर कुफ्र का इल्जाम लगाते हैं, इससे तू अपने रसूल का निकाह पढ़वा रहा है। आवाज कुदरत की आज सुनो, जिब्रील का लहजा, मिकाइल की हैबत, इजराइल की शान शौकत, यहया ईसा का जोर, जकरिया की इबादत है, खिज्र की तूले हयात, ये सारे कमालात जब अबू तालिब में जमा हो गए तो दूसरे से निकाह कैसे? आया तो आप सुने, अल्लाह इमाम बुखारी ने अपनी किताब सही बुखारी में लिखा कि अगर किसी मैयत के सामने, पीछे जैसे मैयत सामने 40 मुसलमान खड़े होकर कह दें कि पालने वाले ये अच्छा था और हम अच्छाई की गवाही देते हैं, हम बुराई नहीं जानते, जो बुराई इसमें है उसका तो अच्छा जानने वाला है, तो खुदा इन गवाहों की गवाही पर उसे बख्श देगा। तवज्जो कर। और 40 अगर मगफिरत की दुआ कर दे तो यकीनी तौर पर बख्शा जाएगा। तो हम 40 गुनाहगार किसी में, अब जब मैंने हवाला दे दिया, अगर किसी को शक है तो सुबह चल कर मेरे कामगाह पर मेरा दामन पकड़े। सीरत हल्बिया में है, किताब यही मौजूद है, जिसका दिल चाहे आप रात को देखे, सुबह पकड़ ले मुझे। अगर ना मिले तो क्या कहा अज़ीज़ान गिरामी कि जब अबू तालिब का जनाजा तैयार हो गया तो कांधे को पैगंबर ने उठाया और कहते हुए जा रहे हैं कि ए मेरे चचा, आपने बड़ा अच्छा मेरा हक अदा किया, खुदा आपको बेहतरीन जजा दे। हम गुनाहगार किसी को कहे कि अल्लाह बेहतरीन जजा दे तो वो बख्शा जाए, और रहमत कुल जनाजा कांधे पर एक तरफ लिए हो और ईमान कुल एक तरफ, ये भी मुकद्दर चाहिए अज़ीज़ान गिरामी, नहीं रुतवाया, ये भी मुकद्दर मरने वाले का कि एक तरफ ईमान कुल जनाजा लिए हुए और एक तरफ रहमत कुल संभाले हुए, बीच को कोई बताने वाला नहीं है, नहीं रुतवाया। यानी बीच में क्या जनाजा आपने नहीं देखा, दो ही उठाते हैं, दो ही उठाने वाले होते हैं। क्या कहा मैंने कि एक तरफ वली है एक तरफ नबी, तो और कौन उठाने वाला? अरे ये अभी कुफ्र ही देख रहे थे, ज़ैनुल आबिदीन फरिश्ते देख रहा था, नहीं और क्या नबी इमाम आगे से उठाए हुए थे, पीछे फरिश्ते संभाले हुए थे, और पैगंबर कहते जा रहे थे अल्लाह बेहतरीन जजा दे, अल्लाह बेहतरीन जजा दे, अल्लाह बेहतरीन जजा दे। इसका मतलब ये हुआ कि रब्बी रहमा कमा रब्बया सलवात वर मोहम्मद। बस भाई बस करो कि और सुना दूं, देख ले घड़ी देख लीजिए, सलवात वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं वक्त की पाबंदी है, धीरे धीरे मैंने इब्तिदा में कहा कारवां बढ़ रहा है। अभी तो आप यकीन करें जितने इससे कुरान ईमान अबू तालिब के कुरान में जितने सूरह बताया था ना, अभी तो एक आयत पढ़ी उसमें से सिलसिला अगर महीना भर 2 महीना 8 रबीउल अव्वल तक पढ़ो तो यही मौजूद रह जाए। मगर मैं अभी बदलता भी रहता हूँ कुछ मजा बदलने के लिए। अगर हर वक्त इंसान मीठा ही खाए तो मीठे का लुत्फ खत्म हो, और हर वक्त नमकीन ही खाता रहे तो नमकीन का जब तक के जायका न बदले। इसीलिए मैं यहाँ वहाँ से घूम घूम के फिर कभी कोई बात सुना देता हूँ। तो अब ये सुनाया कि 2 मंजिलें हैं जहाँ अकीदा बिल्कुल मुस्तहकम देखा जाता है, यानी हमारा हम ख्याल है कि नहीं, एक निकाह ब्याह का मौका और एक आखिरी मैयत का मौका, वो कहीं कोई रियायत नहीं है। ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ाया लिखाया उनके बेटों को, मगर जब निकाह का वक्त गया तो मायूस माया खा के तो चला आया, नहीं गौर किया, निकाह नहीं पढ़वाया मुझसे, मेरे यहाँ आए खा के चले गए। मेरे लड़कों का निकाह मेरे उस्तादों में से किसी ने नहीं पढ़ा दिया। इतने से फर्क थे, कुरान एक किबला एक नहीं है भाई, सब कुछ में हम साथ होते हुए, और वहाँ मान लिया गया कि इतना इख्तिलाफ कि रसूल रसूल है, अबू तालिब काफिर है। और एक बात आ गई है तो सुने, और मजाक की भी है हकीकत भी, कि मैं बड़ी दूर से यहाँ बोल रहा हूँ। फर्ज कर ले कि मुझसे कोई कहे कि जरा चोरी के बारे में कह दीजिए कि चोरी बुरी चीज है, तो मैं पढ़ने लगा, बेधड़क चोरी की मजम्मत करने लगा और शाही की ईमानदारी जानदारी की फजीलत बयान करने लगा। मगर अब माने यहाँ बोल रहा हूँ, कहाँ, कुवैत में बोल रहा हूँ, चोरी बुरी है और शाही अच्छी है, अमानतदारी चाहिए, जानतदारी चाहिए, नेक चलन होना चाहिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मेरे बाप दादे की जिंदगी ही चोरी में गुजरी हो, तो कहता है वो मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे बाप दादे की जिंदगी ही चोरी में गुजरी हो, तब अब क्या होगा? यहाँ तो बोल दूंगा
لیکن اگر میرے وطن میں کوئی کہے کہ چوری پر بولیے تو نہیں بولوں گا. کیوں ڈروں گا کہ لوگ جانتے ہیں میرے باپ دادے کا یہی دھندا ہی تھا. جیسے زبان کھولوں گا فوراً ہی کوئی کھڑا ہو جائے گا نوجوان, مولانا آج مولانا بن کے آئے ہو, کل تمہارے باپ دادے یہی کام کرتے تھے تو آج ٹھیک تھا, وہی تو کھا کے تم پلے ہو, وہی کھا کے تم پلے ہو, آج آئے ہو ہماری مذمت کرنے. ہمارا بچہ ذرا سے چوری کر لیا تو تم بیٹھے ممبر کو بولنے. دیکھو بھائی بات سامنے کی ہے کہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیے جس کا دل چاہے کسی مسلک کی تفسیر قرآن کہ سورہ توبہ جس میں کافر بت پرستوں سے برات کا اعلان ہے, نازل ہوئی سورہ مدینہ میں, اور حکم خدا کا ہے کہ مکہ میں سنایا جائے. نہیں توجہ دیا. ایسا سورہ جس میں صرف بت پرستوں کی اور مشرکوں کی برائی بیان کے برات کا اعلان ہے. ایسا سورہ جس میں بسم اللہ نہیں رکھا گیا ناراضگی کی بنا پر. اور کیجئے سورہ نازل ہوا مدینہ میں, سنانا ہے مکہ میں. اب رسول بھی نہیں جا رہے ہیں, علی کو بھیج رہے ہیں. سوچئے جو میں نے اپنے اوپر مثال دی کہ میرے باپ دادے فرض کر لے چور تھے, یہاں تو چوری کی مذمت کی میں تقریر کر دوں گا, وطن میں ہمت نہیں پڑے گی. اگر سورہ توبہ مدینہ میں سنانا ہوتا تو کسی بھی بت پرست کا بیٹا سنا دیتا. کسی بھی بت پرست کا بیٹا سورہ توبہ سنا دیتا, مگر سنانا ہے مکہ میں جہاں اس کے باپ دادے کا وطن تھا, زندگی گزری ہے. تو علی سے کہا لو یہ سورہ لے جا کے مکہ میں کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کر سنانا. کس کے سامنے؟ کافروں بت پرستوں کے سامنے. تو کیا جانتے ہیں چیلنج نبی کا تھا, اے علی تم جاؤ کافروں میں کھڑے ہو کر بت پرستوں کی مذمت کی آیت پڑھ دو. اور علی نے جا کے سینکڑوں کے مجمع میں پڑھ دیا, اور کوئی عرب کا کافر کھڑا ہو کر بول نہ سکا کہ علی آج آئے ہو بت پرستی کی مذمت کرنے. تمہارے باپ دادے یہ کام کرتے تھے تب تم کہاں تھے؟ نہ بولنا دلیل ہے کہ کافر کافر ہو کر بھی ابو طالب کو کافر نہیں. توبہ کی تفسیر پڑھے اور اس کے نزول کی تاریخ پڑھے, اور کسی کا مقرر کیا جانا اور کسی کا معدول کیا جانا. آمدن وہ رخ چھوڑ دیا ہے. میں تو صرف اپنے موضوع کے مطابق کی بات کو پہلے پیش کر دیا. نہیں سمجھے عزیزان گرامی, کوپا گنج میں اگر چوروں کی مذمت کروں تو اس کا مطلب مجمع چپ رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میرے باپ دادے دیانتدار امانتدار محنت مزدوری کر کے کھانے والے گزرے ہیں, چور نہیں گزرے ہیں. تو علی کا کافروں بت پرستوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر آپ بت پرستی کی مذمت میں سورہ پڑھنا اور کسی کا نہ ٹوکنا. اور کمال دیکھیں کہ ایک اکیلے نے, نہیں سمجھے, ایک اکیلے نے سینکڑوں کے مجمع میں بت پرستی کی مذمت اور برات کا اعلان کر لیا, اور کوئی اف کرنے والا نہیں رہا. اور علی جیسے بول رہے تھے بولے اور سنائے اور چل دیے. ایک دو دن رہ کر وہاں سے پھر چل دیے اپنے وطن دوسرے مدینہ کی طرف. کوئی راستے میں بھی نہیں ملا. کہہ لیا آج تو بڑا کام اچھا کیا, مگر کل تمہارے ابا جب پوچھتے تھے. اور اب سنیے, اگر میں کہیں دعویٰ کروں کہ میں نے ایک دن بھی ایسے نماز نہیں پڑھی, غور کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب کہ میرے باپ دادوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا. نہیں تو مان لیجئے کہ میرے باپ دادے اگر اس مسلک کے رہتے تو میرے کم سنی میں کبھی تو مجھ کو لے گئے ہوتے مسجد میں, روز نہ صحیح تو جمعے کو, اگر جمعے کو نہیں تو عید الفطر کے دن, اور عید الفطر کے دن نہیں تو عید قربان کے دن. ایک دن بھی پڑھ لیتا تو میرا یہ دعویٰ صحیح نہ ہوتا کہ میں نے کبھی ایسے نماز نہیں پڑھی. میرا دعویٰ یہ اسی وقت صحیح ہوگا جب میرے باپ دادوں کا بھی یہی مسلک رہا ہو. تو اب علامہ ابن حجر کی اپنی کتاب سوائق محرقہ میں لکھتے ہیں کہ علی کو کرم اللہ وجہہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. تو دار العابدین اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بت پرست ابو طالب بھی نہیں تھے, ورنہ ان کے لڑکپن میں کبھی لے کر چلے جاتے. بات سے بات پیدا ہوئی, پھر کہتا ہوں ایک جملہ ہے, آج گئی تو اب کتاب کا نام تو کہاں سے ابھی ختم کر دوں گا بھائی. ایک جملہ علامہ ابن مغازلی شافعی نے اپنی کتاب مناقب امیر المومنین
1378 हिजरी में ईरान से छपी हुई किताब और 1316 की छपी हुई मिस्र की, ये दोनों नुस्खे अल्लाह के फजल से मेरे मुताले में रहे हैं। तो उसमें लिखते हैं कि जब फातिमा बिनते असद के यहाँ अली की विलादत होने वाली हुई तो वह तो शरफ से निकली अबू तालिब के साथ। कुछ दूर जाके रास्ता इधर चला गया था एक काबा की तरफ, तो फातिमा बिनते अबू तालिब इधर गए। फातिमा बिनते मेरा 13 रजब नहीं पढ़ रहा हूँ, ये जो अभी कहा ना बाप दादे वाली बात चोर की, उसके सब तो फातिमा बिनते असद गए तो सीधा दरवाजा सामने। अगर कोई मेरी तारीख के मुताबिक मुताला करके देखे, काबा और अबू तालिब का घर आमने सामने, काबा और अबू तालिब का घर आमने सामने, जैसे दोनों का दरवाजा, इधर अबू तालिब का दरवाजा, ये अबू काबा का बैतुल्लाह का दरवाजा, इधर वाला वहां जाना चाहे सीधे चले जाए, वहां वाला यहाँ सीधे जाए। मगर अल्लामा इब्न मगादनी शाफी और सारे दुनिया इस्लाम के उलमा ने लिखा है कि फातिमा बिनते असद पुष्ट की तरफ से गई, पीछे की तरफ से दरवाजा खुला है सामने और रास्ता बदल के पुष्ट की तरफ पीछे की तरफ गई है। अब मैं क्या नतीजा निकाल रहा हूँ, मैंने फातिमा बिनते असद को आवाज दी, जरा ठहरिएगा मोहतरमा मुअज्जमा, ये रास्ता आमने सामने हजारों बार का देखा हुआ, फिर आप यूं रास्ता बदल करके गए। कहा कि यही तो तुझे समझाना चाहती हूँ कि बुत परस्तों की माँ का रास्ता और है, बुत शिकन की माँ का रास्ता और है, बुत परस्तों की माँ का रास्ता और है, बुत शिकन की माँ का रास्ता और है। तो हम रास्ते पर चलते नहीं हैं, हम रास्ता बनाते। फिर अभी इसी लफ्ज को अबू तालिब की ज़बानी कहिए तो दोहरा दूं, ये तो अभी माँ की आवाज है कि बुत परस्तों की माँ का रास्ता और है, बुत शिकन की माँ का रास्ता और है। तो अबू तालिब की जबान से जरा सा फर्क के साथ बोल रहा हूँ कि अबू तालिब कहते हैं सुनो, जो बुत परस्त होगा वो बुत शिकन बेटा पैदा ही नहीं कर सकता। वाह वाह वाह। जो बुत परस्त होगा वो बुत शिकन बेटा, अगर बुत परस्तों में से किसी के बेटे से कहीं बुत शिकनी का कोई झूठा था भी वाकया कहीं हो तो पेश किया जाए, निगर किया। अरब के बुत परस्तों में से किसी का बेटा या जो बुत परस्ती कर चुका हो, अब वो अब मुसलमान हो गया, उनमें से कोई सबूत कहीं से दे दे कि उन्होंने कोई एक भी बुत कहीं तोड़े हो। ये है बुत, सुनिए, ये है बुत, मैं इनको यूं कर चुका और अब कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, 20 बरस गुजर गए, कलमा पढ़े, आज मेरा हाथ बढ़ेगा तो आज बोल, ये पत्थर का तो है लकड़ी का, मगर उस दिन बोलेगा, उस दिन बोलेगा जब मेरा हाथ बढ़ेगा तोड़ने के लिए कि मैं जन्नातीन अपनी अकड़ की खबर लो, तुम अच्छे थे कि मैं अच्छा था, जब तुमने मेरे सामने सजदा किया था उस दिन तुम ही तो थे, आज आए हो तोड़ने कर, रहम खाओ अपने अकीदे पर, अपने ख्याल पर रहम खाओ, मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं तो लकड़ी का काट का मिट्टी का हलवे का हूँ, जब चाहो बनाओ जब चाहो मिटाओ, मेरी कोई परवाह नहीं, मगर अपनी खबर लो कि कल तुम मुझे पूछ चुके हो, खुदा मान चुके हो, आज तोड़ने आए हो। मालूम हुआ जो अपना बनाया होता है हम बनाना भी जानते हैं, बिगाड़ना भी चाहे अल्लाह होता। आगे बोलने की गुंजाइश नहीं है। तो अब वो बुत को वही तोड़ेगा जिसके हाथ, पेशानी, नजर, निगाह, अरे आबरू तक कभी उनके सामने न झुके हों। बस अजीजाने गिरामी, वल्लज़ीना आवव व नसरू उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, जो सच्चे मुसलमानों को पनाह दे दे वो तो सच्चा मोमिन खुदा की नजर में हो जाए, और जो सच्चे रसूल को पनाह दे दे, ऐसे नहीं कि हमारे गांव में चले आइए, नहीं, अपना घर दे, अपना बिस्तर दे, अपना दर दे, अपनी औलाद दे। एक इस्माइल एक दिन लेट गए मीना के मैदान में, ज़बीहुल्लाह हो गए, इब्राहिम खलीलुल्लाह हो गए, और सारी दुनिया के मुसलमान उस सुन्नत पर आज तक अमल करते हैं, कहीं भी हो, नहीं भाई। और ये कमाल अबू तालिब का 3 बरस तक मिनाए मोहम्मद में, 3 बरस तक मिनाए मोहम्मद में अपने फख्र इस्माइल को लेटाते रहे। और यही लेटाने की बात थी, वहाँ दुम्बा लोग कहते हैं कि आ गया, और यहाँ जब
फख्र इब्राहिम अबू तालिब ने अपनी कुर्बानी मिनाए मोहम्मद में पेश किया। दुम्बा नहीं आया, मर्जी खुदा आई। मर्जी खुदा यदीदा ने गिरामी लो अबू तालिब के लाल ले लो, ये रखो अपने पास। नफ्स मुझे दे दो, मर्जी तुम लो। अब मर्जी पर तुम्हारा इख्तियार है, नफ्स पर मेरा तस्वीर। फिर ये बात आगे कहीं फिर किसी दिन गुफ्तगू होगी। वक्त खत्म हो गया 2-4 मिनट मसाइब के। लोग कहते हैं मौलवी साहब मसाइब कम पढ़ते। मौलवी साहब मसाइब कहाँ से पढ़े? ताकत हो तब न पढ़े। 1 घंटा जितना बोलने में लगता है 10 मिनट के मसाइब में उतनी ताकत है। जो जाकिर होगा वो मेरी तस्दीक करेगा। तो एक तो वजह ये है दीवाने गिरामी। अब सुनिए, तो अब जो बात आज की तारीख से मखसूस हमारे हैदराबादी मजलिस के बानी भी है, मरसिया भी उन्होंने पढ़ा और मोहम्मद के ताल्लुक से देखा। सामने की एक बात कहता हूँ, मजलिस में रवायत नहीं पढ़ता। अच्छा, अब मसाहिब के पढ़ने में भी अहले इल्म से मैं गुजारिश करता हूँ कि ग्रुप है कि ज़्यादातर हमने रोलाने वाली रवायतों को सुना के मिजाज को ऐसा आदी बना दिया है। झूठी सच्ची गलत सही रवायत पर नजर लोग नहीं रखते हैं कि रवायत भी गलत है या नहीं चिड़िया हो जाए। ये दामने अहले बैत पर धब्बे की बात है। तवज्जो फरमाए, रवायत झूठी सुनाना ये दामने अहले बैत पर धब्बे की बात है। हमेशा रवायत सही सुनाए और तहकीकी सुनाए, जिसको उलमा ने सही और हकीकी माना हो। तो आगे ज़ैनुलाब्दीन कुछ और नहीं बोलता कि अगर मेरे मजलिसों में मसाइब की कमी हो तो यूँ समझ लेना चाहिए कि मैंने हमेशा ज़िंदगी के हर हिस्से में उन रवायात को पढ़ने से अपने को महफूज रखा है जो रवायात उलमा की नज़र में काबिल तहकीक और काबिल सेहत। तो अब कहने क्या जा रहा था कि करबला के मैदान में 72 शुहदा की रवायत तो मशहूर है और 18 बनु हाशिम, मगर आज जिन शहीदों के तज़किरे की बात है, जो मेरा मौजू है, उस मौजू से उनकी शहादत को खुसूसी रब्त ये है कि करबला के मैदान में जितने शहीद हैं वो बनु हाशिम में से वो एक तरफा अबू तालिब की औलाद में है, मगर औन मोहम्मद माँ और बाप दोनों की तरफ से अबू तालिब की नस्ल में हैं। आप मेरे नौजवान बच्चे पूछेंगे कि कैसे? जाफर तैयार अबू तालिब के बेटे, हैदर कर्रार अबू तालिब के बेटे, और मोहम्मद हैदर कर्रार के नवासे हैं और जाफर तैयार के पोते हैं। और ये दोनों जाफर तैयार हैदर कर्रार अबू तालिब के, तो ये दोनों नौनिहाल अज़ीज़ाने गिरामी खुसूसी शहीद हैं कि जो माँ और बाप दोनों तरफ से अबू तालिब। अब मालूम होता है कि अबू तालिब ने नबी बा इस्लाम और बानी इस्लाम की नुसरत का जो अहद किया था वो ऐसा वादा था कि औलाद के रगोपे में भी वो वादे नुसरत सरायत कर गया। अज़ीज़ाने गिरामी, क्या दुनिया पेश करेगी? मैं औरों के घर की बात नहीं करता, मैं तो खुद बनु हाशिम के घर की बात करता हूँ कि मैं सारी दुनिया के इस मुत्तफ़िक़ा फैसले को सही मानता हूँ, फिर भी मान के नहीं मानता। आप कहेंगे ये कौन सा? क्या अब्बास जो रसूल के चचा कहे जाते हैं वो भी मुसलमान हुए, कलमा पढ़ा। ज़ैनुलाब्दीन इस पर बहुत नहीं दादा करता, इतना कहता हूँ कि अगर वो सच्चे मुसलमान थे तो करबला के मैदान में उस मुसलमान चचा के घराने का कोई तो आ गया होता। करबला की तारीख शाहिद है, हुसैन जब चले हैं मदीना से तो अब्दुल्ला, अब्बास के बेटे अब्दुल्ला और उबैदुल्ला रास्ते में रोकने के लिए तो आए हैं, मगर साथ चलने की कहीं बात नहीं पाई जाती। और अबू तालिब की औलाद है कि जितने आए हैं या तो इमाम हुसैन ने उनको साथ लिया या मसलहत की बिना पर कहा, जैसे मोहम्मद हनफिया से कहा कि ए मेरे भाई, अगर आप भी मेरे साथ चले करबला में तो मेरी इमामत की जो अमानतें हैं वो कौन महफूज रखेगा? मैं तो आपको अमानतदार बना के जा रहा हूँ। जब मेरा लाल अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन रिहा होके आएंगे तो ये तबर्रुकात अंबिया और तबर्रुकात अबूजद जो है आप महफूज रखें, उनके हवाले कर दीजिएगा। तो अज़ीज़ाने गिरामी, कहने का मतलब ये है कि चचा तो उनको भी लोग कहते हैं अब्बास के, उनके घराने के लोग इमाम हुसैन को रोकने आए हैं, मगर साथ का उनकी रवायत नहीं। और यहाँ सुने आ गई है बात तो मोहम्मद के ताल्लुक से जो मेरे मुताले के मुताबिक सही रवायत है वो ये है कि अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार हजरत ज़ैनब के सरताज और शौहर उन दिनों में सख्त तालील थे जब हुसैन ने सफर मदीना से किया है। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास के यहाँ इमाम हुसैन की रवानगी की खबर पहुंची। ज़ैनब ने शाना हिलाया, मेरे सरताज, आपको याद होगा जब मेरे बाप ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया तो ये कहा था अब्दुल्ला, जब मेरा नूर नजर हुसैन मदीना से हिजरत करे, सफर करे तो ज़ैनब को न रोकिएगा। कहा मेरे साथ, हाँ हाशा
शहजादी मुझे खूब याद है। कहा कि बस भैया के सफर पर रवाना हो रहे हैं, मुझे इजाजत है मैं उनके साथ जाऊं। अब्दुल्ला ने इजाजत दी, मगर इस शर्त के साथ कि ये शहजादी आप जाए, क्योंकि मैं आपके वालिद से बुजुर्गवार और अपने चचा से वादा कर चुका था, मगर ये बच्चे मेरे जो हैं इनको इतने दिनों तक के लिए छोड़ दीजिए जब तक मैं के बिस्तर से उठने के लायक न हो जाऊं, और जब जरा सा मुझे फाका होगा फौरन इनके मामू की खिदमत में इनको रवाना कर दूंगा। साहिब मक्तल अवालिम लिखते हैं कि रवाना हो गया काफिला और मोहम्मद को अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने अपनी तीमारदारी के लिए रोक लिया। 2-4-10 दिन के बाद जरा ये फाका हुआ, मगर अब यहाँ की रवायत छोड़ता हूँ। अब वहाँ की रवायत है कि काफिला रवा दवा मदीना से मक्का 4 महीना क्याम रहा मक्का में, और जब यहाँ से रवाना हुआ काफिला, ज़ैनब की नजर उठती नहीं है। जो औरतें अपने साथ बच्चों को कुर्बानी के लिए जा रहे, ज़ैनब उनसे नजर नहीं मिला रही है। इस तसव्वुर के साथ कि हर बीवी के पास तो उनके बच्चे भैया को पैदा होने के लिए है, मेरे लाल अभी तक नहीं पहुँचे। मातम दाराने हुसैन के एक मंजिल पर काफिला ठहरा और किसी की आमद की बात होने लगी। फिजा हुसैन के खैमे में दाखिल हुई और कुछ जो मंजर देखा, बड़ी शादमानी के साथ ज़ैनब के करीब आई। ए शहजादी, अरे मुबारक हो। कहा क्या बात है? कहा आपकी गोद के पाले आना मोहम्मद आ गए हैं, आपके मामू की खिदमत में अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार का खत पेश किए हुए हैं। हुसैन देख रहे हैं, ज़ैनब ने पेशानी जमीन पर रखी। एक बार दीवाने, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मेरी माँ के साथ ने हुसैन जुमले सुने। अभी तो सफर है, करबला का मैदान नहीं आया है। और मोहम्मद मामू का हाथ पैर चूम के खत दिखा के माँ के खिदमत में आए। माँ को आदाब तस्लीमात। माँ ने बलाए ली, गले से लगाया, दुआएं दी, शुक्र का सजदा पहले हो चुका। अब ज़ैनब को बात, अब ज़ैनब को हिम्मत हुई लैला से नजर मिलाने की, और बीवियों से जिनके बच्चे उनके साथ थे। फिर मातमदारा ने हुसैन, फिर ज़ैनब की एक नई खुसूसियत करबला में है कि जितने भी करबला के मैदान में आले बैत के घराने की बीवियां हैं, उनमें से ज्यादा एक बच्चे और करेंगे। जैसे लैला के फर्जंद इकबाल, रबाब के फर्जंद अलिया सलाम और कराजी जाने गिरामी, ऐसा नहीं कि दोनों बच्चे लैला के हों या दोनों ही बच्चे। ये खुसूसियत ज़ैनब की है। भाई की मुनासिबत से कि भैया अगर आपके 2 बच्चे शहीद होंगे तो मैं भी 2 बच्चों को अपने आपके ऊपर फिदा करूंगी। और फिर बहन भाई की ये आपस का मुआहिदा, चाहे ज़बानी चाहे ज़बाने हाल से, कि भाई मैं आपकी दूर शरीक बहन जो हूँ तो आपके साथ हर गम में भी बराबर। जिम्मेदारियां अलबत्ता अलग अलग होंगी। खैमे से बाहर की जिम्मेदारी आपकी होगी, खैमे के अंदर की जिम्मेदारी मेरी होगी। बस एक तस्वुर है, रवायत को अपने लफ्जों में कहता हूँ। ज़ैनब ने कहा भैया खैमे के बाहर की आपकी जिम्मेदारी, खैमे के अंदर की मेरी जिम्मेदारी, उसको यूँ अदा कर दो 2 जुमलों में। फिर बताए मजलिस तमाम कैसे अदा कर दो भैया। खैमे के बाहर की जिम्मेदारी का एक मतलब है कि अली अकबर का लाशा लाना आपका काम होगा, मगर लैला को तसल्ली देना और मामू को संभाल कर अली अकबर के लाशे के पास लाना और संभाल कर रखना, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। अरे कासिम का फरमान लाशा लाना आपका काम होगा। कासिम की बेवा माँ उम्मे फरमा को संभालना और सब्र की तसल्ली देना, तस्लीम करना, ये मेरी जिम्मेदारी। मगर ये मेरे भैया हुसैन इब्न अली, ये तो बताइए कि मैं हर बीवी को तो सहारा दूंगी, मगर जब मेरे बच्चों का लाशा आएगा कौन मेरे बाजुओं को पकड़ेगा, कौन मुझे सब्र की तसल्ली देगा। मातमदारा ने हुसैन, यही है हकीकत। और करबला के वाक़े में अज़मत ज़ैनब कभी तफसील से सुनाऊंगा। बात यहाँ आई है कि माँ ने मेरी गोद के पालो, जाओ मामू को अपनी जान कुर्बान करो। रवायत को मुख्तसर करते हुए अर्ज कर रहा हूँ, बच्चे आए माँ से मामू से इजाजत ली, मैदान कारबाल में आए। एक रवायत है, साहिब ने लिखा है, उसका एक हिस्सा ये है कि मोहम्मद मैदान में पहुंचे, थोड़ी देर के बाद फिजा घबराई हुई खैमे में आई और कहा शहजादी
बच्चे अपने दादा और अपने नाना के अवलवालों और हौसलों के साथ लड़ते हुए फुरात की तरफ बढ़ रहे हैं। फुरात की तरफ बढ़ रही है खबर जनाब फिजा ने शहजादी को दी और शहजादी फौरन मुड़कर कहते फिजा से, मेरे फिजा बड़ी वफादार कनीज रही हो अब तक, एक काम मेरा ये अंजाम दो कि मेरे शेर अब्बास को जल्दी आवाज दो। इधर फिजा बढ़ी, आवाज दिया, अब्बास खैमे में हाजिर हुए। शहजादी क्या कहा, देखो फिजा ने बताया है कि उन्होंने मोहम्मद फुरात की तरफ बढ़ रहे हैं अपने दादा और नाना के बलवलों और हौसलों के साथ। ए अब्बास जाओ, उन्हें मेरा पैगाम पहुंचा दो कि सकीना और हुसैन के बच्चों को पानी पिलाए, अगर एक कतरा भी पी ले हुसैन। उसमें शहजादी अब्बास पहुंचे लश्कर के करीब और जाकर उन्हें मोहम्मद से बात पहुंचाए और वापस आए। बाकन हकीकत ये है कि ये हजरत जाफर तैयार और हैदर कर्रार के नवासे और पोते ऐसे ही लड़े जैसे मालूम हो रहा था जंगे मूसा में जाफर तैयार, जैसे हैदर कर्रार खैबर में बदमाशम दारा ने उसे फौज के सरदार ने कहा, तुम्हें खबर भी है ये किसके वाले हैं? हुसैन के भांजे जाफर तैयार के पोते हैदर कर्रार के नवासे, ऐसे तुम इन पर गालिब नहीं आओगे। चारों तरफ से इसे अरे घेरे में ले लो। बस ज़ैनब के चाँद शाम के बादल में छुप गए, अरे नीम से हाथों से जुदा, जख्मी सर जख्मी घोड़े से गिरे, मामू को आवाज दी, हुसैन इब्ने अली इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हुए कमर की तरफ बढ़े। बस ये आखिरी जुमला है कि ये पहला और आखिरी मौका था का तारीख है आशूरा में कि हुसैन इब्ने अली एक साथ दो मैयतों को सीने से लगा कर लाए और दर खैमा पर रखा। आवाज दिए, मेरी दुखिया बहन आओ, तुम्हारे लाल सरसरू होकर आए हैं। ज़ैनब ड्योढ़ी तक आई, बच्चों को शहीद देखा, खून में नहाए हुए। आवाज दी रूह तहरा को, ए अम्मा गोद उछल गई, बच्चे फिदा हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मानने वाले मोहम्मद तमाम मोमिन दुनिया से गुजर चुके, जब परेशान जब बीमार हम सब के हाथों में दामन अहले बैत को मजबूत से मजबूत, हमारे दिलों में वलाए अहले बैत की शमा को और रोशन करते।